अस्सलाम वालेकुम। लखनी खबरनामे के नाज़रीन कैसे लखनी खबर लेकर मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनाज। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले दिन सीएम चंद्रबाबू नायडू, वाईएस जगनमोहन रेड्डी और दूसरे कितने एमएलए हलफ लिए। आंध्र प्रदेश रियासत को पूरे इंडिया में सबसे अच्छी रियासत बनाते बल्कि सेक्रेटरीट में एपी एम्प्लॉइज के फंक्शन में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू बोले। उर्दू में बातें करने के वास्ते आंध्र असेंबली में कोई भी नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए भी इंग्लिश और तेलुगु में हलफ लिए। इराक के जंगजू लोग 4 बड़े शहरों पे कब्जा करने के बाद अब बगदाद की तरफ जा रहे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया वेंकटापुर में एक भाई अपने भाई का मर्डर करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले दिन चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, वाईएस जगनमोहन रेड्डी और कितने एमएलए हलफ लिए। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर, फिर अपोजिशन लीडर, फिर एपी मिनिस्टर और उसके बाद वुमेन्स एमएलए हलफ लिए। आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले सेशन के पहले दिन नए सेनेट में 100 एमएलए हलफ लिए। 19 जून को 12:54 पे ऐवान की कार्रवाई जनगणना मना से शुरू हुई। उसके बाद सबसे पहले चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद अपोजिशन के लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी और उनके बाद 19 मिनिस्टर, फिर उसके बाद वुमेन्स एमएलए और उसके बाद दूसरे एमएलए हलफ लिए। स्पीकर की कुर्सी पे एक दिन के स्पीकर नारायण स्वामी बैठे हुए थे। इन्होंने पूरी असेंबली की कार्रवाई चलाई। असेंबली में तेलुगु देशम के एमएलए तेलुगु देशम का खंडवा और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए उनकी पार्टी का खंडवा पहन के आए। సభ్యుడు లేదా సభ్యురాలు సభాపతికి అభివాదం చేసి అక్కడ ఉన్న సభ్యుల పట్టికలో సంతకం చేసి తన స్థానంలో కూర్చోవాలి. ప్రస్తుతానికి సభ్యులకు స్థానాలను కేటాయించడం జరగలేదు. అందువల్ల సభ్యులు లభ్యమైన ఏ స్థానంలోనైనా ఆసీనులు కావచ్చు. సభాపతి ఎన్నిక తర్వాత ఆయన గౌరవనీయులైన సభ్యులు ఆసీనులు కావాల్సిన క్రమాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నిక అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అను నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ అధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. కేని కృష్ణమూర్తి అని నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసము, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుడినైన కేఈ కృష్ణమూర్తి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. చిన్నరాజప్ప అనే నేను శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసము, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తితో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేయుచున్నాను.
ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ్యుడైన నేను నియమితులైన నేను నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. శ్రీ చయ్యను పోతుడని నేను శాసనసభ్యుగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోవు కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుడైన నేను సభ నియమాలను కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుడైన గోపాలకృష్ణ నేను సభ నియామకాలను కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू सेक्रेटरीट में एपी एम्प्लॉयज के फंक्शन में स्पीच देते हुए बोले, आंध्र प्रदेश स्टेट को पूरे मुल्क की अच्छी रियासत और आंध्रा का नया कैपिटल दुनिया का सबसे अच्छा कैपिटल बनाएंगे बोल के बोले। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू अपनी स्पीच में बातें करते हुए आंध्र का नया कैपिटल बनाने के वास्ते 10 लाख रुपए दिए। इसके वास्ते एम्प्लॉयज को थैंक यू बोले। इन्होंने बोले नया कैपिटल दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहेगा। इन्होंने एम्प्लॉयज को बोले उन लोगों के जो भी प्रॉब्लम है वो फौरी दूर कर देने कहते हैं। इन्होंने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को फौरी हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान करे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में पुकारते बोले रियासत के 2 टुकड़े जल्दबाजी में करने की वजह से खिते की प्रॉब्लम हो गए। लाइटों का, पानी का प्रॉब्लम दोनों रियासतों के वास्ते हो रहा है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में पुकारते बोले रियासत के 2 टुकड़े हड़ाहोड़ी में करने की वजह से खिते की प्रॉब्लम हो गए। लाइटों का और पानी का प्रॉब्लम दोनों रियासतों को हो रहा। इन्होंने बोले तेलुगु लोग चाहे तेलंगाना में रहो या आंध्रा में, इन लोगों की तरक्की के वास्ते काम करेगी और साल 2019 में तेलंगाना में भी पावर में आएंगी। పట్టించుకోలేదు. ఈరోజు మీరు చూస్తే ఏదో పద్ధత పూర్తిగా లోపించింది, ఒక పద్ధతి లేకుండా చేశారు. ఈరోజు నేను ఆ విషయమే చెప్పాను. ఈరోజు అప్పు మాత్రం జనాభా ప్రాతిపదికన చేశారు. ఆదాయం అప్పులు కట్టాలంటే మళ్ళీ ఆదాయం ఉండాలి, ఆదాయం మాత్రం లొకేషన్ పరిధిలో చేశారు. आंध्र असेंबली में कोई भी उर्दू में बातें करने वाला नहीं है। असेंबली में हलफ लिए 100 एमएलए तेलुगु और अंग्रेजी जुबान में हलफ लिए। वाईएसआर कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए अंग्रेजी में और 2 तेलुगु में हलफ लिए। आंध्र प्रदेश असेंबली में कोई भी उर्दू जुबान में बातें करने वाले नहीं है। सुबह 19 जून को असेंबली में एमएलए हलफ लिए बात सामने आ गई। कहीं को बोले तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जो मुसलमान एमएलए जीत के आए उन लोगों भी उर्दू जबान में हलफ नहीं लिए। अमजद बादशाह इंग्लिश में, ए चांद पाशा और जलील खान तेलुगु जबान में हलफ लिए। बीजेपी के टी श्रीनिवास, वाईएसआर कांग्रेस के गौतम रेड्डी इंग्लिश में और बाकी पूरे तेलुगु जबान में हलफ लिए। आप लोगों को ये बातें अच्छे से मालूम है कि तेलंगाना असेंबली में मजलिस के 5 एमएलए उर्दू जबान में और बीजेपी के राजा सिंह हिंदी में हलफ लिए थे। तेलंगाना में 4 जबानों में हलफ लिए, मगर आंध्र असेंबली में खाली 2 ही जबानों तेलुगु और इंग्लिश में हलफ लिए। అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया वेंकटापुर में जुमेरात को सुबह 4:30 बजे एक भाई अपने भाई के ऊपर ग्रेनेड डाल के इसका मर्डर कर दिया। ऐसा मालूम है जुमेरात को सुबह में 4:30 बजे अहमद खान अपने भाई अहमद खान के ऊपर फताना डाल के इसका मर्डर कर दिया। अहमद खान का 9 महीने पहले तलाक हुआ था और अहमद शराब पी के आके अपने घर वालों के साथ मारम पीटी करता था और गालियां देता था और जायदाद में हिस्सा दियो बोल के डिमांड करता था।
रोज के पुकारे से और लड़ाइयों मुसीबतों से बेजार होकर अजमत खान अपने भाई अहमद खान के ऊपर ग्रेनेड डाल के मर्डर कर दिया और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन को जाके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले लाश को उस्मानिया को भिजा के केस बुक कर लिया और तहकीकात कर रहे हैं। अहमद खान की वालदा का बोलना है अहमद को इससे पहले भी इन लोग जेल से छुड़ा के लाए थे और इसके बुरे कामों से इन लोग बहुत बेजार थे। इनकी अम्मा का बोलना है ऐसे नाफरमान बेटों के साथ ऐसी करे तो अच्छा रहता। आप लोगों को भी याद होगा थोड़े दिन पहले चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन के एरिया में भी एक माँ अपने शराबी बेटे का चाकू से कत्ल कर दी थी। इस्लाम में शराब को हराम करार देने के बाद भी मुसलमानों का शराब के नशे में घर वालों को तकलीफा देना, मारम पीटी करना बहुत अफसोस की बात है और ऐसे कैसा होने से रोकने के वास्ते आलिमा मुसलमानों को हराम और हलाल के बीच में फ़र्क बताना तो कितने की घरा और जिंदगियां बर्बाद नहीं होंगे। खाली आलिमाच नहीं, इन लोगों के साथ साथ हुकूमत को भी खुले आम शराब पीने पे पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। सागरा है, 2 महीने से किस्सा चल रहा बेटा। मैं मेरे आदमी को फालिश मारा, मैं हार्ट पेशेंट है, 2 महीने से मेरे आदमी का लेके चल रही। घर का हिस्सा दो, घर बेचो, अम्मा की बहन की फ़कत गाली के सिवा उतरा नहीं। बाप को जो है सो नली मत नहीं गया, कोसी माँ बर्दाश्त करती है अपने मर्द की नली मत है तो बाबा जो मैं बर्दाश्त करने के वास्ते। हाँ कब तक आखिर मेरा जान बस खाली 3:30 में 3:45 हो रहे थे उनके। मेरा आदमी पानी दे बोल के तो बाहर ही बैठी थी, जाके पानी दी, शुरू कर दिया। जाके धंधा कर जा शुरू करते मेरे तीसरे बच्चे को सब्र नहीं आया, लेट के गालियाँ दे रहा था, बाहर अंदर से गनेट ला के गनेट की 78 की आवाज़ आई मेरे को। उन्हें कहाँ मारा अभी भी नहीं मालूम मेरे को, मैं देखिश नहीं लाश को, कहाँ मार लिया क्या कर लिया नहीं। क्या नाम था आपके? एक बात याद रखो बेटा, जो औलाद ये भी बयान देती, जो औलाद माँ बाप का कहना नहीं मानेंगी उसकी यही हालत होना चाहिए, कोई भी रहना। उस मरे सवाले का नाम अहमद खान है, उससे छोटा है अजमत खान जो मारे सवाले। शादी हो गई थी अहमद खान की? शादी हो गई, तलाक भी हो गया, होके भी 9 महीने हुआ। उनकी जोरू उनके 2 बच्चों को ले लेके चले भी गई। यहाँ रहते थे उन्होंने? अलग रहते थे अहमद? कहाँ पर? जो मर गए घर में जोरू को छोड़ दे के यही थे। क्या काम करते थे? ड्राइवर थे। ऑटो ड्राइवर? नहीं एयरपोर्ट की गाड़ी चलाते थे। अच्छा खाली लिए तो में है, इसका इंतकाल हो गया और शराब की वजह से हुआ। क्या नाम है? इनका नाम अहमद खान है। ये क्या करते थे? ड्राइवर है। किसकी वजह से हुआ? शराब की वजह से हुआ है। जुमेरात के दिन हरिबौली के एरिया में कन्ना मादन्ना हॉल में भाग्यनगरम बोनाल उत्सव कमेटी के मेंबरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करें। भाग्यनगरम उत्सव कमेटी के मेंबरान जुमेरात के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्ना मादन्ना महाकाली मंदिर के बारे में बातें करते हुए बोले कि यह मंदिर तेलंगाना रियासत का सबसे पुराना मंदिर है। पुलिस स्टेशन के बाद आर्य समाज के लीडर और देवड़ी के मालिक मोहम्मद मंसूर अली ये मंदिर को पब्लिक को पूजा के वास्ते दे दिए और अली ख्वाजा ये मंदिर को और चढ़ा करे और वो ज़माने में 50 रुपये फंड भी दिए। इन्हों बोले हर साल बोनाल और महाकाली जितना मनाते और ये 66वां सालाना बोनाल का त्यौहार है कहते। इन्हों बोले यह मंदिर हिंदू मुस्लिम के दोस्ती की पहचान है। कई को बोले तो मुसलमान कांग्रेस के बड़े लोग भी यह मंदिर को बनाने के वास्ते मदद करें। सोनिया गांधी, पहले के सीएम जाना रेड्डी, राजशेखर रेड्डी यह मंदिर में आके दर्शन भी करेंगे थे। इन्हों बोले नए जनरेशन को बोनाल फेस्टिवल की तारीख बताने के वास्ते एक फोटो की एग्जीबिशन साल को साल लगाते गए थे। कन्ना मादन्ना महाकाली मंदिर की तरफ से तेलंगाना का गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट और केसीआर साहब को मुबारकबाद देते। उन्होंने जो तेलंगाना में जो जोश और खुर्रम के साथ बोनालू को मनाया जाता, वो बोनालू को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर करे, उसके लिए हम हमारे तरफ से उनको धन्यवाद। और ख़ास तौर पर इस साल रमज़ान और बोनालू एक ही महीने में मिलके आ रहे,
हम हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर खास तौर पर पुराने शहर में अमन के साथ ये त्यौहार हुए जैसा पूरा कोशिश करेंगे। अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल में ये बोनालू का त्यौहार 11 जुलाई से स्टार्ट होकर 20 जुलाई को मेन बोनालू फेस्टिवल होगा और 21 तारीख को जुलूस के शक्ल में हाथी के ऊपर माता का गट को निकालकर यहाँ से नया पुल तक प्रोसेशन से जाएंगे। इराक के जंगजू लोग 4 अहम शहरों पर कब्जा कर लेने के बाद अब बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इराक के ये लड़ाकू ग्रुप का नाम ISIS है। ये ग्रुप अप्रैल 2013 में अल-कायदा से निकल के ISIS के नाम से चालू हो गया था। ये ग्रुप अल-कायदा से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है बोल के सुनने में आ रहा। ये भी सुनने में आ रहा उसके कारकुन खाली 15,000 है, मगर ये थोड़े बाकियाँ 9.5 लाख इराकी फौज पे भारी पड़ गए हैं। इराक में हो रही सो आपसी जंग का असर पूरी दुनिया, खास तौर पे हमारे मुल्क इंडिया पे भी पड़ा। इराक में इंडिया के तकरीबन 10,000 लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। 100 हिंदुस्तानी वर्करां लड़ाई वाले इलाकों में फंसे हुए हैं, उसमें से 46 नर्सें हैं। इंडिया की हुकूमत उन लोगों को हिफाजत से मुल्क को लाने के प्लान बना रही है। इंडिया के 40 लोगों को कौन भी किडनैप कर लिए, अगवा हुए सो लोगों के बारे में पता नहीं चला। वो लोग बगदाद की तारिक नूरुल हुदा कंपनी में काम करते थे। ये 40 लोगों में ज़्यादा पंजाबियाँ हैं। इराक के अंदर की ये जंग अगर जल्दी ख़त्म नहीं हुई तो इंडिया में भी उसका असर पड़ सकता। वो कैसे बोले तो इंडिया 25% तेल इराक से खरीदता करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ब्यास डैम से 19 जून को 3 लाशें निकाले गए थे। यह हादसे में 24 बच्चे मर गए थे। 19 जून को जो 3 लाशें ब्यास डैम से निकाले उनके नामा ये हैं: शिवा प्रकाश वर्मा, मार्चला अखिल और आशीष मंथा है। मर गए 24 बच्चों में से अब तक बहुत कोशिशें करके 12 जनों की लाशें निकाले और 18 जून को किरण नाम के बच्चे की लाश निकाले थे। 19 जून को इसकी लाश शमशाबाद एयरपोर्ट को आई। किरण के घर वाले ये स्टूडेंट के आखिरी रसूमात पूरे कर दिए। पाकिस्तान की मशहूर सिंगर गुलनाज और मस्तान जान को 19 जून को नामालूम से लोग मार दिए। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकाम पेशावर में खून की लोग फायरिंग करके पेशावर सिंगर गुलनाज को मार दिए। पुलिस वाले बोले वो लोग हथियार लेके गुलनाज के घर में घुस के फायरिंग करे, जिससे गुलनाज की मौत हो गई। यह किस्सा पेशावर केंट के नज़दीक गुलबर्ग में 19 जून को हुआ। कर्नाटक के गवर्नर हंसराज भारद्वाज जुमेरात के दिन पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। मोदी से पहले इन्होंने कल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात करे थे। हंसराज के अलावा आसाम के गवर्नर JB पटनायक भी होम मिनिस्टर से मिले। बेचारे गवर्नर आजकल जगह पे नहीं है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर शेखर दत्त 18 जून की रात को अपना इस्तीफा इंडिया के सदर प्रणब मुखर्जी को भिजा दिया। गवर्नरों को दबाव डाल के हटाने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी बोल रही नई हुकूमत बजाय महंगाई पे कंट्रोल करने के सियासी बदले लेने पे तुली हुई है। जनता दल यूके लीडर केसी त्यागी भी गवर्नरों के साथ होने वाले एनडीए हुकूमत के रवैये पे बहुत औंधी। इन्होंने बोले पहले जो काम यूपीए सरकार कर रही थी वो काम अब बीजेपी हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान के जुनूबी सूबे सिंध के शहर सेहून शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स के वक्त जबरदस्त गर्मी की तरफ से 4 दिनों में 41 लोग मर गए। वहाँ पे गर्मी 48 डिग्री तक चले गए थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी जुमेरात के दिन अपने घर पे पार्टी से ठहर के जीते 100 एमएलओ को नाश्ता कराए। ये लोग आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले सेशन के वक्त पार्टी कौन कौन से मसलों पे उठाएंगी ये इस पे तफसील से मशवरा करें। मदिगा रिजर्वेशन पुराटा समिति के बड़े मुंडा कृष्णा मदिगा 19 जून को सिकंदराबाद के MRPS ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले VNR कॉलेज पे कई को एक्शन नहीं ले रहे। मुंडा कृष्णा मदिगा मीडिया वालों से बोले VNR कॉलेज के खिलाफ कई को एक्शन नहीं ले रहे। इन्होंने बोले कॉलेज के बच्चों को स्टडी टूर बोल के लेके जाके मार डाले। इन्होंने ये भी बोले KCR की बेटी कविता भी ये कॉलेज में पढ़ते थे, इस वास्ते तेलंगाना गवर्नमेंट वाले फौरी एक्शन नहीं ले रहे। इन्होंने बोले तेलंगाना के होम मिनिस्टर भी एक्शन लेने से डर रहे। VNR कॉलेज पे एक्शन लेना बोल के इन्होंने डिमांड करे। और ये भी बोले
मरे 100 बच्चों की आत्मा को शांति मिलना बोल के 20 जून को तेलंगाना के पूरे मंडलों में कैंडल रैली निकालने वाले हैं। कहते ప్రమాదంలో చిక్కుకొని గల్లంతు కావడానికి ప్రధాన బాధ్యత కాలేజ్ యాజమాన్యం అండి. సంఘటన జరిగి 11 రోజులు కావస్తున్నా విజ్ఞాన కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సంబంధించిన యాజమాన్యం మీద तेलंगाना की हुकूमत रमजान में मुसलमान सरकारी नौकरियों को दफ्तरों से 1 घंटा पहले जाने की इजाजत दे दी। तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इफ्तार और तरावी के वास्ते मुसलमान भाइयों को सहूलत देने के वास्ते मुसलमान सरकारी मुलाजिमों को रमजान में 1 घंटा पहले छोड़ देने का ऑर्डर दिए। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा इराक के पीएम नूरुल मुल्की को पीएम की पोस्ट से हट जाओ बोलते ऐसा दिख रहा। अमेरिका के बड़े बाराक ओबामा को चारशंबे के दिन लीडराना एक मीटिंग में इराक के पीएम नूरुल मालिकी को पोस्ट से छोड़ने के वास्ते फोर्स करो बोल के बोले। कई को बोले तो इन्होंने सही काम नहीं करने की वजह से इराक में लड़ाइयाँ हो रही और ये लड़ाइयाँ मुल्क के वास्ते खतरनाक बन गए हुए हैं। ओबामा इराक के प्रॉब्लम दूर करने के बारे में बातें करने के वास्ते एक मीटिंग करे थे। इसमें पूरे लीडराना नूरुल मालिकी पे पुकार लिए और बोले इनकी गलतियों की वजह से बाग़ियाँ फायदा उठा रहे हैं। तेलुगु और तमिल फिल्मों की मशहूर हीरोइन काजल अग्रवाल की 29वीं सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की सब एडिटर शाहना जब्बार की खास रिपोर्ट देखेंगे। काजल अग्रवाल 19 जून 1985 में मुंबई में पैदा हुई। इनके अब्बा का नाम विनय अग्रवाल और अम्मा का नाम सुमन अग्रवाल है। काजल छोटे रहने मुंबई के एरिया कोलाबा में हैसो सेंट एन्स हाई स्कूल में पढ़े। इसके बाद जय हिंद कॉलेज मुंबई में पढ़े और केसी कॉलेज मुंबई से मास मीडिया की डिग्री पूरी करी। काजल कॉलेज में थे वक्त ही मॉडलिंग शुरू कर दिए थे। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग शुरू करने से पहले MBA में ब्रांड मैनेजमेंट करना चाह रहे थे, मगर इनको एक्टिंग में चांस मिला तो इन्होंने इधर घुस गए। काजल अग्रवाल सबसे पहले बॉलीवुड की फिल्म क्यों हो गया ना जो 2014 में आई थी एक्टिंग करें। ये फिल्म में इन्होंने दिया की सहेली का एक छोटा रोल करे। इसके बाद इन्होंने एक तमिल फिल्म करे जो 1.5 से 2008 के बीच में रिलीज हुई। इसके बाद काजल 2007 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आए और इनकी तेलुगु में सबसे पहली फिल्म लक्ष्मी कल्याणम है जो ज़्यादा हिट नहीं थी। इसके बाद इन्होंने कितने की तमिल और तेलुगु फिल्में करें, मगर 2009 में आई सो तेलुगु फिल्म मगधीरा से इन्होंने बहुत मशहूर हो गए और ये फिल्म वो साल की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। ये फिल्म की वजह से इनका नाम तेलुगु की बेस्ट हीरोइन के नॉमिनेशन में आया। इसके बाद इनकी किस्मत इनका बहुत साथ दी और इनको कितने की ब्रांडों के एडवर्टाइजमेंटों के वास्ते ऑफर आना शुरू हो गए। इसके बाद इन्होंने कितने की फिल्में करे जिसमें 2010 में आई सो डार्लिंग और वृंदावन, 2011 में आई सो मिस्टर परफेक्ट, 2012 में आई सो बिजनेसमैन, 2013 में आई सो नायक और बादशाह बहुत ज़्यादा हिट गए। इसके अलावा इन्होंने 2 हिंदी फिल्में भी करे जिसमें सिंघम और स्पेशल 26 है। सिंघम 2011 में आई थी और तकरीबन 100 करोड़ का बिजनेस करी। ये फिल्म में काजल की एक्टिंग देख के लोग बहुत तारीफ करे और अब इन्होंने इतने हिट फिल्में देने के बाद साउथ इंडिया के सबसे ज़्यादा मशहूर सेलिब्रिटीज में आ गए। तेलंगाना स्टेट के डिप्टी सीएम राजैया 19 जून को पंजागुट्टा के निम्स हॉस्पिटल का दौरा करें। इन्होंने निम्स दवाखाने के पूरे वार्डों का दौरा करें और मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले ये दवाखाने को भी एम्स के वैसा बना देंगे और इसके वास्ते हुकूमत की तरफ से पूरी मदद करेंगे। वहाँ पे थोड़े नर्सा धरना दे रहे थे। कई को बोले तो ये लोगों को नौकरी से निकालने वाले हैं। कहते ये नर्सा भी डिप्टी सीएम राजैया से बात करके अपने प्रॉब्लम को हल करो बोले। इन्होंने नर्सों के प्रॉब्लम को हल करते बोल के वादा करे करते। शमशाबाद एयरपोर्ट में थोड़े थोड़े दिनों को गैर कानूनी तौर पे सोना लाने वाले पकड़े जा रहे हैं। अभी तक करोड़ों रुपए का सोना और कितने की लोग पकड़े गए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे चोरी छुपके सोना लाने वालों का सिलसिला अभी तक बाकी है। 19 जून को बैंकॉक से आने वाले 2 मुसाफिर पकड़े गए। वो लोग गैर कानूनी तौर पे 4 किलो सोना लाए हुए थे।
बैंकॉक, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लंदन और अमेरिका जैसे मुल्कों से गैर कानूनी तौर पर सोने को इधर से उधर करने की कोशिशें चल रही, जिसको कस्टम के ऑफिसर घड़ी घड़ी नाकाम बना रहे। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में थोड़े थोड़े दिनों में प्राइवेट और गवर्नमेंट बसों के एक्सीडेंट होते जा रहे। महबूबनगर इटाकुला मंडल के कोमरामपड़ी के पास एक गवर्नमेंट की पैसेंजरों से फुल बस का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर सका और बस अचानक ही उलट गई और बस में बैठे हुए लोगों को जबरदस्त मारने लगे। पुलिस वाले मारने लगे सो लोगों को दवाखाने में शरीक कर दिया और केस की छानबीन कर रहे हैं। तेलंगाना की नई रियासत में टीएस हुर्फों के साथ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तेलंगाना के 10 जिलों के गाड़ियों के वास्ते रजिस्ट्रेशन का एक गेजेट निकाले। आरटीसी के गाड़ियों पे Z लिखा हुआ रहेगा। पुलिस के गाड़ियों के वास्ते P9 कोड रहेगा। ट्रांसपोर्ट के गाड़ियों के वास्ते TUVWXY सीरीज मुकर्रर करें। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन थोड़े दिनों से बंद था, अब फिर से शुरू हो गया है। डिस्ट्रिक्टों के कोडा ऐसे रहेंगे: आदिलाबाद TS1, करीमनगर TS2, वरंगल TS3, खम्मम TS4, महबूबनगर TS6, रंगारेड्डी TS7, 8, हैदराबाद TS9, 10, 11, 12, 13, 14, नलगुंडा TS5 और निजामाबाद TS16 रहेगा कभी। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रियासत आंध्र प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वैसाच एक इंस्टीट्यूट बनाते बोल रहे हैं। बीजेपी के सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू 2 जून को सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को लेटर भेजे थे। इसके बाद ही ये फैसला हुआ। वेंकैया नायडू बोले एपी तंजीब जदीद कानून 2014 में इसके बारे में वादा करे थे कि नई रियासत आंध्र प्रदेश में AMIS बनाएंगे। ये वादे को पूरा करना सेंटर का काम है। 18 जून को सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन वेंकैया नायडू से बातें करते हुए बोले इनकी मिनिस्ट्री वाले आंध्र प्रदेश में एम्स के बारे में इत्तेफाक कर लिए। जुनूब मगरिबी मानसून 5 से 7 दिन देर से आया और ओडिशा, बिहार, मगरिबी बंगाल तक पहुंच गया। मानसून आते किसानों के चेहरों पे खुशी आ गई। इसके बाद जबरदस्त गर्मी और वहशत से लोगों को बहुत सुकून हो गया। 20 जून को मानसून तेलंगाना और सहारी आंध्रा में आ जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी बारिश हो सकती है। भुवनेश्वर में वेदर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बोले मानसून ओडिशा के साहिली जिलों में आया हुआ है। हमेशा मानसून 13 जून तक ओडिशा में पहुंच जाता था, मगर इस बार मानसून 7 दिन देर से आया। हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को जापान का दौरा करने वाले थे, मगर पार्लियामेंट के इजलास की तरफ से यह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर M महेंदर रेड्डी बोले एपी लेजिस्लेटिव असेंबली के अतराफ 2 किलोमीटर तक बगैर इजाजत जलसे, जुलूसा, रैलियां और गैर कानूनी तरीके से हथियार लाने ले जाने के अलावा लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं रहेगी। सिटी पुलिस कमिश्नर M महेंदर रेड्डी बोले हैदराबाद और सिकंदराबाद के एरियो में जलसे, जुलूसा, रैलियां और कुछ भी निकालने की इजाजत नहीं रहेगी। ये पाबंदी 19 जून को सुबह में 6 बजे से 25 जून की शाम को 6 बजे तक रहेंगी। इस पे अमल नहीं करे तो वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे कहते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस के नायब सदर और यूथ लीडर राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की सब एडिटर शाहनद अब्बार की खास रिपोर्ट पेश है। इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी अपनी सालगिरह 19 जून को लंदन में अपनी बहन और बहनों के साथ मनाई, जबकि पूरे मुल्क और हमारे हैदराबाद ने धूमधाम से तो मनाई, मगर कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन में हार के बाद ये शेर इनकी सालगिरह पे खूब फिट होता। ना गुल खिले हैं, ना उनसे मिले हैं, ना मैं पिए हैं, अजीब रंग में अब के बरस बाहर आई। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी जो 10 सालों तक गवर्नमेंट में थी, इलेक्शन हार जाने से गवर्नमेंट चली गई। राहुल गांधी कांग्रेस के नायब सदर और इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल यूनियन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। राहुल गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी पार्टी के कामा करें। पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त होने के बाद भी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट हल्के अमेठी से इलेक्शन जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। राहुल गांधी का पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी फैमिली से ताल्लुक रहने से पार्टी के लीडर इनके आगे पीछे घूमते रहते। इनकी अम्मा सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है और इनके अब्बा राजीव गांधी है।
राहुल गांधी के दादी और अब्बा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मुल्क के पीएम की कुर्सी पे बैठे। इंदिरा गांधी का 1984 में और राजीव गांधी का 1991 में कत्ल हुआ। राहुल गांधी को सिक्योरिटी की वजह से पढ़ाई शुरू करने में काफ़ी टाइम लगा। कई मरतबा इनके स्कूल तब्दील करे। इसके बाद फिर इनकी बाहर के मुल्कों में पढ़ाई हुई। इनका अता पता नहीं था, खाली थोड़े लोगों को कुछ मालूम था कि इन्हों बाहर के मुल्कों में पढ़ाई। इन्हों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुकम्मल करे। राहुल गांधी सियासत में 2004 में बाज़ाब्ता शरीक हुए। उससे पहले इन्हों 2004 से पहले हल्लो खाली सियासत के बातें करते थे। इन्हों 2004 में अमेठी से इलेक्शन लड़े और 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीत गए। उस वक़्त राहुल गांधी पे भारी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने पार्टी का खोया हुआ मुकाम दोबारा वापस लाना था। आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते होंगे, कांग्रेस को ऐसे वक्त शिकस्त हुई जब पार्टी इंतखाबी मुहिम की कमांड राहुल गांधी को देते हुए इनको मुल्क का पीएम बनाने की बातें कर रही थी, मगर इनकी किस्मत में पीएम की कुर्सी नहीं थी शायद। इस वास्ते पार्टी हार गई। राहुल गांधी 19 जून 1970 को पैदा हुए मुल्क, मगर अभी तक इन्हों कुमारे मतलब इन्हों शादी नहीं कर लिए। राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की तरफ से इनकी अम्मा सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी और सगों से हटके कांग्रेस के कितने के लीडरों को मुबारकबाद पेश है। ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాల ద్వారా, ప్రజలకు అవసరమయ్యే కార్యక్రమాల ద్వారా పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా పుస్తకాలు, అలానే స్లేట్ పంపిణీ చేయడం కానివ్వండి, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత డెంటల్ అలానే కంటి వైద్య శిబిరాలు, అలానే యూత్ రన్స్ కానివ్వండి, చెట్లు నాటే కార్యక్రమాలు, ఇలాంటి ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాల ద్వారా వారి పుట్టినరోజు కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఈరోజు వారి జన్మదినం సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణలో ఉన్న యువకులందరి తరపున, రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ తరపున రాహుల్ గాంధీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ तेलंगाना स्टेट के आईटी मिनिस्टर हाईटेक्स में 2014 इंडिया गार्ड गिफ्ट शो का इनॉग्रेशन करें। ये 4 दिन का शो है। इसमें हुई सो मीटिंग में इन्हों बोले, हैदराबाद को हार्डवेयर हब के जैसा बनाना हमारी गवर्नमेंट की कोशिश है। सॉफ्टवेयर में इंडिया के अंदर हैदराबाद दूसरे नंबर पे है और वैसे हार्डवेयर को भी डेवलप करना बोल के हमारी कोशिश है। इसके वास्ते शमशाबाद के एरिया में 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को चलाने वाले हैं। तेलंगाना में TV9 आंध्रा ज्योति को रोक देने के इशू में तेलंगाना रियासत का हाथ नहीं है। इन्हों बोले गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाना गलत बात है। जुमेरात के दिन ताड़बन, बहादुरपुरा और इसके आजू बाजू के एरियो में GHMC के कमिश्नर सोमेश कुमार पैदल फिरे और लोगों के प्रॉब्लमों को सुने। जुमेरात के दिन ताड़बन और मीरानम तालाब के एरियो में GHMC के कमिश्नर सोमेश कुमार पैदल फिरे और मीडिया से बात करते हुए सोमेश कुमार बोले, हैदराबाद के लोगों को टैंक बंड को जाके फिरने और वॉकिंग करने के वास्ते बहुत मुश्किल हो रही। इस वास्ते हम लोग 9 नंबर पहाड़ी से ताड़बंद तक निकलिस रोड और टैंक बंड के जैसा यहाँ पे बना रहे हैं। इन्होंने बोले इसके वास्ते हम लोग 45 करोड़ रुपए सैंक्शन करें। इसके अलावा सोमेश कुमार बहादुरपुरा के नाले का दौरा करे। उस वक्त उनके साथ चारमीनार के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी भी थे। सोमेश कुमार दौरा करते वक्त उनके आजू बाजू के दुकानदार वहाँ पे आके उनसे शिकायत करें कि ये काम जल्दी से जल्दी कराओ, ये काम बहुत दिनों से रुके हुआ है जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही। सोमेश कुमार पूरों के बातों को गौर से सुने और पब्लिक को यकीन दिलाए, अब मैं दौरा कराना इसके वास्ते अब पहले का जैसा कुछ भी नहीं होगा, काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सोमेश कुमार पब्लिक से अपील करे कि आप लोग GHMC के साथ कोऑपरेट करो और जो भी इलीगल चीज़ें हो रहे हैं इसको रोकने में हमारी मदद करो। पेशावर के हांगो में नेमालूम सो हमला आवरा एक ही खानदान के 7 लोगों को धनाधन फायरिंग करके मार डाले। मरने वालों में 2 औरतें भी थे। अली खैल कबीले के ये लोग और एक जई एजेंसी के कैंप में मुहाजिरों के जैसा जिंदगी गुजारते थे। कैलिफोर्निया से आई हुई एक 26 मेंबरों की टीम 19 जून को सुबह में टोली चौकी के एक स्कूल का दौरा करी। ये टीम में पूरे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं जो अमेरिका के इलाके कैलिफोर्निया से आई हुई है। पूरी टीम के मेंबर अमेरिका के सिटीजन हैं। ये पूरी टीम अमेरिका से डॉक्टर मोइन अंसारी के साथ आई। डॉक्टर मोइन अंसारी भी अमेरिकन शहरी है और इन्हों अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। ये टीम हैदराबाद के दूसरे मुकामों का दौरा करने वाली है। इन लोगों का मकसद ये है कि बच्चों के स्कूलों के बैग वजन रहने से बच्चों के पीठ में दर्द होता, इसको दूर करना और इससे कैसा बचना है।
ये टीम इसके बारे में बच्चों को तरबियत देंगी। ये टीम पूरे इंडिया का दौरा कर रही है। नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज 19 जून को शाम में 4 बजे नामपल्ली डिवीजन के लाइट के बड़े ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करेंगे। एमएम के एमएलए जाफर हुसैन मेराज 19 जून को शाम में 4 बजे विजयनगर कॉलोनी के अपने ऑफिस में नामपल्ली डिवीजन के लाइट के डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग करेंगे। रमजान के महीने में लाइट बंद न होना बोले और लाइट के डिपार्टमेंट वाले भी अपने प्रॉब्लमों के बारे में एमएलए को बताएं। इन्होंने बोले लाइट के डिपार्टमेंट वालों की प्रॉब्लमों को दूर करेंगे और इन्होंने ये भी बोले रमजान से पहले लाइट बंद हो रही मगर इसका टाइम फिक्स नहीं है, जब बोले जब बंद हो जा रही। लाइट वाले बोले अब लाइट रोजाना सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक बंद होगी और शाम में 5 बजे से 6:30 बजे तक बंद होगी और रमजान में लाइट बंद नहीं होगी, 24 घंटे खुली रहेंगी बोल के लाइट के ओहदेदार इनको यकीन दिलाए। अपोजिशन लीडर वाई एस जगन मोहन रेड्डी आंध्रा असेंबली के इजलास में जब आए तो इनको देखने के वास्ते असेंबली के सामने की रोड पूरी जमा हो गई थी। इन्होंने एमएलए का हलफ लिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और एमएलए वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो पॉलिटिक्स में आए जब से एमपी थे, पहली बार 2014 के इलेक्शन में रियासत के 2 टुकड़े होने के बाद आंध्रा के सीएम बनने के ख्वाब देखते हुए एमएलए का इलेक्शन लड़े थे। इन्होंने एमएलए तो बन गए मगर सीएम नहीं बन सके। कई को बोले तो इनकी पार्टी को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी सीएम बनने के वास्ते होना था, मगर सीएम की कुर्सी पे चंद्रबाबू नायडू बैठ गए और जगन अपोजिशन लीडर होकर असेंबली में 19 जून को जब पहली बार आंध्रा असेंबली को आए तो इनको देखने के वास्ते हर कोई बेचैन था। इन्होंने असेंबली के अंदर आते पुराने तरीके से दोनों हाथ जोड़ के हर एक को नमस्ते करें। इन्होंने असेंबली में हलफ ले लिए। असेंबली में सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे चंद्रबाबू नायडू हलफ लिए, उसके बाद फिर वाई एस जगन मोहन रेड्डी हलफ लिए। एबीवीपी वाले 19 जून को कमिश्नर ऑफ एजुकेशन ऑफिस लकड़ी का पुल पे धरना दिए। प्राइवेट स्कूलों में दिन में आए वैसा फीसा ले रहे हैं बोल के धरना दिए और आरईए पे अमल करना बोल के डिमांड करें। ये स्टूडेंट ऑफिस का गेट खोल के अंदर जाके गड़बड़ियां करने की कोशिश करें तो पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ के लेके चले गए। तुर्की के पहले के फौजी कमांडर एवेरन को 1980 में बादशाह का तख्ता पलटने के मामले में इन पे इल्जाम साबित हुए बल्कि उम्र कैद की सजा सुना दी। इन्होंने जब तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे थे जब कितने की लड़ाई हुए थे। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 19 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,040 रुपए और 24 कैरेट सोना 27,540 रुपए। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 23 दर्जे हरारत और ज्यादा से ज्यादा 32 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 26 और ज्यादा से ज्यादा 32। मेदक कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 32। वरंगल कम से कम 19 और ज्यादा से ज्यादा 32। करीमनगर कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 31। महबूबनगर कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 32। आदिलाबाद कम से कम 30 और ज्यादा से ज्यादा 36। नलगुंडा कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 32। निजामाबाद कम से कम 26 और ज्यादा से ज्यादा 37। रंगारेड्डी कम से कम 23 दर्जे हरारत और ज्यादा से ज्यादा 32 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करें। आखिर में एक बार सुर्खियां फिर देखेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली के पहले दिन सीएम चंद्रबाबू नायडू, वाई एस जगन मोहन रेड्डी और दूसरे कितने के एमएलए हलफ लिए। आंध्र प्रदेश रियासत को पूरे इंडिया में सबसे अच्छी रियासत बनाते बल्कि सेक्रेटरीट में एपी एम्प्लॉइज के फंक्शन में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू बोले उर्दू में बातें करने के वास्ते आंध्र असेंबली में कोई भी नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए भी इंग्लिश और तेलुगु में हलफ लिए। इराक के जंगजू लोग 4 बड़े शहरों पे कब्जा करने के बाद अब बगदाद की तरफ जा रहे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया बेलकटापुर में एक भाई अपने भाई का मर्डर करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नाज़रीन, अपने खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।